Hello. Hello, am I audible? Let's. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon. Good afternoon. So, still people are joining, I guess. Yes, sir. Just give us 2 minutes. By the time I'll just introduce you people who are or come may join the meeting. Sure, sure. So, audience, let's welcome an alum of IRT from 2009 and 13. Apart from excelling in his educational life, Sir has keen interest in extracurricular activities of our college and has been bestowed with titles like Miss Personality, Mr. Perfect, Mr. Popular, and has been the general captain of our college. The list is quite endless. I am highly honored to call the senior manager of Tata Motors, Sir Pratish Jha, amongst us. Sir, you to continue. Thank you. From Thank you, Ifra. So, can I ask you to please share the screen, the PPT slide? सर शेयर हो रही है? Yeah, it's visible. You can go to the first slide and have it full screen. Okay, sir. Maximize it. Just maximize it. सर फुल साइज है. हाँ, ये यहाँ पे आपको ना यहाँ पे मिलेगा आपको नीचे जहाँ पे आप स्लाइड्स को मैग्नीफाई करते हो तो वहाँ पे लेफ्ट साइड में जस्ट आपको दिखेगा फुल स्क्रीन करने का. देन दीज स्लाइड्स द रोलर्स विल एलिमिनेट एंड फुल स्क्रीन ऑफ द डिस्प्ले ऑफ स्लाइड विल टेक प्लेस. उसको आप चेक कर लो एक बार. जहाँ से मिनिमाइज और मैग्नीफाई करते हैं स्लाइड को तो माइनस के बगल में एक डिस्प्ले बना हुआ है, दैट इज आइकन फॉर हैविंग फुल स्क्रीन. Or if there is any issue, then we can start. Not an issue. सर इतना ही रहता है, फुल नहीं रहता है. Okay. नहीं हो रहा. मेरी स्क्रीन तो फुल शो हो रहा है बट गूगल मीट पे फुल शो नहीं हो रहा हो. ओके, मतलब हम लोग को यही देखना है कि जो ऑडियंस है उनसे आप मुझे एक यही रिक्वेस्ट था कि एक या दो लोग जिनके घर में कोई भी मतलब ऐसा कुछ नॉइज नहीं आ रहा है तो वो अनम्यूट ही रहे, सो दैट कोऑर्डिनेट करने में अच्छा वो आसानी रहता है. ठीक है, नहीं तो लगेगा कि 1-to-1 टॉक जरूरी है. तो एक या दो लोग अनम्यूट करके रखें हु विल बी कोऑर्डिनेटिंग दिस इवेंट विथ मी, ताकि कभी भी मुझे अगर नॉइज या और मतलब ऑडियो और विजुअल्स दोनों के बारे में अगर पूछना हो कि क्लियर है कि नहीं तो मैं उनसे पूछ सकता हूँ. बाकी सारे लोग अपना म्यूट रखेंगे और कुछ भी रिलेटेड क्वेश्चंस है तो चैट बॉक्स में आप डाल सकते हो.
एंड जो एडमिन है वो उन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं और लास्ट में वी कैन हैव अ क्लोज लुक इनटू दैट। तो स्टार्ट करता हूं मैं। ओके, so very very good afternoon to all of you. Just I am explaining once again. My name is Pritish Jha and I am an industrial and production engineering graduate from IIT Allahabad and I am 2013 year pass out. Currently I am working as a senior manager in Tata Motors Jamshedpur plant and I hope you and your near and dear ones are doing well in these tough times. And before starting the session, I would like to thank the Alumni Association of our college for having this beautiful session. And it is a very good platform where we can have a very important exchange of information which can help you in shaping your career prospects. And all know that it's a very difficult time for all of us. So cracking a interview and getting a job is one of an uphill task for as of scenario. So this event will focus on the job prospect post-COVID situation and how we can smartly prepare for these accordingly. तो जैसा कि मेरे कोऑर्डिनेटर से भी बात हुआ था, we will be using the mode of language as English and Hindi both. हिंदी में ही ज्यादातर मैं ट्राई करता हूँ रखने का, क्योंकि अगर हिंदी में रहेगा तो जो क्वेश्चंस भी आएंगे तो आप लोग की भी झिझक होगा तो आप लोग पूछ सकते हो। बहुत लोगों को माइट भी इंग्लिश में प्रॉब्लम हो। लैंग्वेज इज जस्ट अ बैरियर, उसको देखना नहीं है। वी जस्ट हैव टू बी अ स्मार्ट कम्युनिकेटर बनना है अपने को। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेशन। अपना जो वेबिनार है, आई एम ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Okay. वेबिनार ऑन जॉब प्रोस्पेक्ट पोस्ट कोविड एंड स्मार्ट प्रिपेयर्डनेस। तो इसमें मैं एक बार 10 मिनट के लिए अपना सारा इंट्रोडक्शन दूंगा, जिससे आप लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत सारे लोग इसके बाद भी, दिस इज बिगनिंग आई गेस फर्स्ट मैं आया हूँ, उसके बाद और भी सारे लोग आएंगे जो मुझसे भी बहुत अच्छे एकेडमिकली बहुत अच्छे होंगे और अच्छी पोस्ट पे होंगे। बट मेरे ख्याल से जो चीज मैं आप लोग को दे सकता हूँ वो ये है कि ये एक जेनरिक है। इट इज नॉट बेस्ड ऑन कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या थर्ड ईयर बैठ रहा है या इसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या मैकेनिकल के ही लोग हैं। तो माई अप्रोच विल टोटली बी अ जेनरिक अप्रोच कि किस तरीके से आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करके जाऊं मैं। जितने भी टाइम अभी हम लोग 1 घंटा साथ में है तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिशियल देगा। तो मेरा आई विल नॉट बी बायस्ड विथ माई ब्रांच। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जो भी मेरे सॉल्यूशंस मैं आपको दूं, कुछ भी गाइडेंस दूं, वो कहीं ना कहीं जेनरिकली सब पे लागू होगा। तो फॉर दैट एक इंटरेक्शन होना जरूरी है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं आपको पहले अपने बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से क्या क्या था मैं कॉलेज में और किस तरीके से मैं अपने प्रोफेशनल जर्नी में ट्रांजिशन के थ्रू आया और अभी मैं क्या करता हूं। देन प्रोफेशनल वे फॉरवर्ड की क्या क्या आप लोग को कैसे आज के डेट में आप जब काम ये ऑफिस और वो सब लाइफ के बारे में आपको थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा और आप किस तरीके से जो आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो आए हैं वो मैं उसका रिजोल्यूशन दूंगा आपको एंड में। क्रैकिंग इंटरव्यू टिप्स विल वन ऑफ द वाइटल पिलर जो मैं इस इवेंट में आपको बताऊंगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के टिप्स आपको दूंगा। वैल्यू एनालिसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसके बारे में आप लोग को बताया जाएगा। लीन वे अप्रोच है। स्मार्ट एम्प्लॉय मंत्र, स्मार्ट का यहाँ पे फुल फॉर्म है जो आगे स्लाइड में आप लोग को पता चलेगा। एंड लास्ट 5S एक टूल है, लीन टूल बोलते हैं, तो ये जापानीज सक्सेस मंत्र है, इसके बारे में भी आप लोग को बताएंगे। तो ये केवल एक किताब वाली सेशन नहीं है जस्ट कि आपको बस पढ़ाई के बारे में बताया जाएगा। इट विल बी होल सम ऑफ फन फॉर नेक्स्ट 1 आवर। तो चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट आगे बढ़ाइएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, देखिए हम लोग सेम कॉलेज से हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस तरीके से आप लोगों से इंटरेक्ट कर पा रहा हूं और एक एक करके आपको बताता हूं कि इलाहाबाद में मेरे की मोमेंट्स क्या थे। जब IIT में मैं था 2009 में आई ज्वाइन और फर्स्ट ईयर में आप देखोगे तो मुझे मिस्टर पर्सनालिटी का किताब मिला था, थोड़ा बहुत गाना गा लेता था उधर। और उसके बाद ही मैं कल्चरल कमेटी का मेंबर बन गया और आई वॉज अ होस्टलर, प्राउड होस्टलर। और मैं अयोध्या हॉस्टल में रहता था और वहां पे डिग्री डिप्लोमा का काफी वो चलता था कि डिग्री डिप्लोमा के मैचेस होते थे, आज भी होते होंगे वहां पे। अभी
इस साल को तो छोड़ ही दीजिए, बट एक बहुत टचल रहता था कि डिग्री डिप्लोमा का वॉलीबॉल और क्रिकेट के मैचेस होते थे, तो दोनों में मैंने हॉस्टल को, डिग्री डिवीजन को रिप्रेजेंट किया था। और कॉलेज के चेस डिवीजन में भी था, जो चेस का टूर्नामेंट होता था, तो वहां भी अच्छा परफॉर्म किया था। जब हम सेकेंड ईयर में आए तो सीनियरों ने टेक्नोवेशन किया, तो उसमें स्पीड डेटिंग का इवेंट था। आई डोंट नो वेदर आज के डेट में होता है कि नहीं, तो वहां पे मिस्टर परफेक्ट का टैग मिला था। देन क्योंकि चेस में अच्छा परफॉर्म किया तो सीनियरों के नजर में आया, तो वहां से दे पिक्ड मी अप फॉर रिप्रेजेंटिंग आवर कॉलेज इन IIT BHU वाराणसी, जो स्पर्धा इवेंट होता है फरवरी में, जनरली थर्ड वीक ऑफ फेब में होता है, 21, 22, 23 तारीख के आसपास में। तो वहां पे आई रिप्रेजेंटेड फॉर कंटिन्यूअस, आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, तीनों साल मैंने कॉलेज को चेस में रिप्रेजेंट किया था वहां पे। देन आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ, मोस्टली आप जो मेरे प्रोफाइल में कॉलेज में देखोगे कि आई एम मोर कीन इनटू कल्चरल एक्टिविटीज में रहा मैं बहुत ज्यादा, और स्पोर्ट्स में था। तो धीरे धीरे करते हुए मैं सोलो, डुएट, स्टेट, इन सब में प्राइजेस लाता गया, और कॉलेज में कहीं ना कहीं लोग जानने लग गए। जब आप कहीं ना कहीं फर्स्ट ईयर में मिस्टर या इस तरीके का फ्रेशर या पर्सनालिटी का टैग मिलता है, तो वहीं से आप वो भीड़ से थोड़ा सा अलग हो जाते हो, मेरा ये मानना है। बट क्योंकि इतने सारे लोग में एक या दो टैग होती है, तो बाकी लोग करें क्या? तो वी हैव एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, जो हम शोकेस करके अपने आप को भीड़ से अलग कर सकते हैं। तो यही था। थर्ड ईयर में आई वेंट टू बीइंग एन एडिशनल वॉइस कैप्टन ऑफ कल्चरल्स। देन अगेन आई रिप्रेजेंटेड कॉलेज इन चेस, ये इन IIT। मतलब मैंने छोड़ा नहीं इस चीज को। एंड जब टेक्नोवेशन करा people from IP, तो we contributed for the maximum number of sponsorship generated for that year टेक्नोवेशन में। आप लोग को बिलीव नहीं होगा, हम लोग कान्हा श्याम जो होटल है, जान रहे होगे आप लोग, बहुत बहुत ही फेमस होटल है, हम कान्हा श्याम देन आई वाज अ चीफ कोऑर्डिनेटर फेयरवेल, जो कॉलेज में हुआ था, तो उसमें चीफ कोऑर्डिनेटर मैं ही था। तो नेक्स्ट फाइनल ईयर में आकर के जनरल कैप्टन बनाया गया। अगेन आई रिप्रेजेंटेड। उसके बाद मैं आपको एक सबसे अलग बात बताऊं, कॉलेज का आज तक कभी 2001 से ये बीटेक का स्टार्ट हुआ है IRT में, और फर्स्ट टाइम 2013 में कॉलेज का एक बैंड बना था, रॉक बैंड, और उसमें आई वाज लीड वोकलिस्ट, और वॉर ऑफ बैंड का एक सेशन कराया गया था 3 दिन का, 8th of April to 10th of April 2013। तो वहां पे वॉर ऑफ बैंड में कॉलेज की तरफ से भी एक बैंड उतरा था। तो दैट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट जाते जाते, बिकॉज आई एम अ 2013 पास आउट, तो जस्ट मेरे पास आउट होने के 1-2 महीने पहले आई गॉट इन दिस अपॉर्चुनिटी, तो मैंने उसको यूटिलाइज किया था। देन फाइनली जूनियर्स का प्यार मिला, एंड दे टैग मी विद मिस्टर पॉपुलर इन द फेयरवेल इवेंट इन 2013। तो ये एक मेरा जर्नी था कॉलेज का। और जस्ट कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ तक आवाज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है? हेलो, नेक्स्ट आई विल शो यू सम ऑफ द पिक्चर्स उस टाइम का। तो ये देखिए, आपको दिखेगा यहाँ पे, ये जो पॉइंट आउट कर रहा हूँ, फर्स्ट पिक्चर यही वॉर ऑफ बैंड का था जो भी हम बात कर रहे थे। देन उद्भव में फैशन शो हुआ, स्किट, ये टेक्नोवेशन में फेस पेंटिंग था। देन फेयरवेल दिया था सीनियर्स को, तो देन आई परफॉर्म्ड अ सॉन्ग फॉर देम। फिर AU काफी आना जाना था मेरा रिगार्डिंग दिस ओनली। तो AU में JK इंस्टीट्यूट है, इट इज द बीटेक होता है वहां से, तो JK इंस्टीट्यूट में भी वहां पे परफॉर्म किया था। नेक्स्ट अगर हम आएंगे तो दिस इज वन ऑफ द, हम लोग जब टेक्नोवेशन में वहां से स्पॉन्सरशिप उठा करके लेके आए थे कान्हा श्याम से, दैट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट। तो उसके बाद हम लोग एक गेट टुगेदर पार्टी किया, फिर एक टेक्नोवेशन का करवाया था, उस टाइम का है वॉल पेंटिंग। ये कैंटीन का एरिया आप देख रहे होगे, ये कैंटीन है आपका। उसके बाद होली का एंजॉय, तो बहुत ऐसे मोमेंट थे। नेक्स्ट कीजिए। तो मैं ये सब इसलिए आप लोग को दिखाना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आप लोग को ये एक देखिए, यहाँ पे हम जब सेकेंड ईयर में आए तो हमें अपना जो टैग है मिस्टर पर्सनालिटी का जूनियर को देना होता है। तो वह उस समय के जो मेरा जूनियर था वो मिस्टर मिस पर्सनालिटी का टैग उनको दिया। तो ये फ्रेशर्स पार्टी का है। एंड फिर उद्भव में हमारे स्किट जो ये गब्बर की पाठशाला बहुत फेमस हुआ था,
वो जीबीटीयू एक्चुअली क्या था कि 2012 के टाइम पे ही गौतम बुद्ध टेक्निकल यूनिवर्सिटी ये सब बनाया गया था, और महामाया वो जो दो बाइफरकेट कर दिया गया था यूबीटीयू को, वो हमारे सेशन में हुआ था। तो वी फाइंड आउट कि कहीं ना कहीं मतलब बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए हैं, 800-900 कॉलेजेस खुल चुके हैं यूपी के अंदर में। तो जीबीटीयू का फुल फॉर्म हमने गब्बर भाई टेक्निकल यूनिवर्सिटी करके एक दिखाया था। तो बहुत एक अच्छा अनुभव था वहां पे, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम हम लोग, आप मानोगे नहीं, मैं स्कूल में आज तक कभी स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया था, एक बार बस गाना गाया था, अदरवाइज मैं कभी स्टेज पे रहा नहीं। तो मेरा जो भी आप कहोगे कि एक एक्सपेंशन हुआ मेरे पर्सनालिटी का, वो मैंने आईआईटी इलाहाबाद में ही किया है। ऐसा नहीं है कि मैं एक्चुअली, मैं आपके बारे में मतलब अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, मेरा नेटिव एक्चुअली बिहार का है, एंड गाजियाबाद में मेरे फादर पोस्टेड थे, तो वहीं से मुझे डोमिसाइल मिल गया यूपी ट्यूब में आकर के, फिर वैसे मैं आया था। तो गाजियाबाद इज दिल्ली एनसीआर, तो उसका कुछ ऐसा इम्पैक्ट नहीं था मेरे